is that Lamb of God, and his name is Jesus. त्याचे नाव जावन आसा जेजू ख्रिस्त, जाणें आपले रगत वारयलें आनी ताच्या रगता उदेशी मनशाक सुटका मेळ्ळी. God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. In him was the life. Hallelujah. बहुत ही राष्ट्र का बाप होगा. You will be a father of many nations. तब तक उसको बच्चा भी नहीं था. हालेलुया. और हम देखते हैं बाद में कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक बेटा दे दिया जब वो 99 what is that 99 साल का था. तब सारा उसकी बीवी जो उसको बच्चा नहीं हो सकता था, परमेश्वर ने एक मिरेकल करके एक बच्चा उनको दे दिया. उसका नाम था आइजैक. हालेलुया. So Abraham got Isaac. So now we are tracking down the history. Okay, so now we have Adam and Eve. Okay, after Adam and Eve, then Cain and Abel, then we have Seth, and then we have Noah, and then we have Shem, Ham, and Japheth, and from Shem's lineage, now we have Abraham, and from Abraham we have Isaac. Hallelujah. Isaac usko paida ho gaya. Now we have Isaac, and then now in Genesis चैप्टर 26 हम देखते हैं वही वादा जो परमेश्वर ने अब्राहम को किया था, वही वादा अभी अब्राहम के बेटे को अभी परमेश्वर कर रहा है. He is making the same promise what was made to Abraham. Now in Genesis 26 verse 3 says, dwell in this land and I will be with you and bless you, for to you and your descendants I will give all these lands. I will perform the oath which I swore to Abraham your father. जो मैंने आपके बाप को कहा था, जो वादा किया था, वो ही प्रॉमिस मैं तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे वंश के ऊपर करूंगा. हालेलुया. And I will make your descendants multiply as the stars of heaven. I will give to your descendants all these lands, and in your seed all the nations of the earth will be blessed. आपके वंश के द्वारा राष्ट्र, पूरे राष्ट्र को आशीष मिलेगी. हालेलुया. Hello, you are one of those nations. Hallelujah. You are one of those nations. यहाँ पर जो उत्पत्ति में लिखा है, परमेश्वर आपके बारे में भी बात कर रहा था कि अब्राहम के द्वारा ये वादा आपके ऊपर भी ये फुलफिल हो जाए, that you too will be blessed. You are one of those nations that God was talking about. Praise the Lord. Hallelujah. So now God promised Abraham the same promise now he gives to Isaac his son. He repeats it. Now Isaac got Jacob and Esau. Now Jacob अभी Jacob यानी Jacob. Everybody say Jacob. Okay, now Jacob, this means he is a cheater. Actually Isaac had two boys. It's very interesting. Actually उनको twins उसके Isaac के wife को, Rebecca को twins हो गए थे, right? She had twins. Actually they were twins in her stomach. So the first one came out was very hairy, बहुत ही बाल था और लाल था. Okay, इसके लिए उन्होंने उसको ईसौ नाम दे दिया. The firstborn was actually Esau. Okay, this is interesting, no? Everybody say history. It's good. Bible history. Amen. Hallelujah. So इसको ईसौ नाम दे दिया. ईसौ का मतलब है हैरी. H-A-I-R-Y. Okay. So Esau was born. And then as he was coming out, the other one who was coming out behind him, दूसरा जो बेटा वो भी आ रहा था, उन्होंने दूसरे बेटे ने ईसा का पैर को पकड़ लिया. Caught his heel, you know. और उसके माँ ने उसको याकूब नाम दिया. इसका मतलब है चीटर.
चीटर, धोखेबाज, धोखेबाज नाम दे दिया. सो जेकब मीन्स धोखेबाज. ओके, ऑलराइट, ओके. सो ऐसा ही हुआ कि जेकब ने ईसो को धोखा दे दिया. ईसो तो बहुत ही वॉज अ वेरी पेट के लिए, he was a foodie. It's very interesting. He loved food. उसको खाना बहुत अच्छा लगता था. एक दिन वो बहुत ही उसको भूख लगी थी और याकूब ने बहुत अच्छा दाल बनाई थी. बहुत अच्छी दाल बनाई थी, खुशबू वाली दाल, अच्छा वाला दाल बनाई थी. ओके, सो ईसो को भूख लगी. अरे कुछ तो दे दो रे खाने को. वो ये बहुत ही चालाक था. कौन? याकूब. उसने बोला अच्छा मैं तुझे देता हूँ ना, मैं तुझे देता हूँ, ये दाल जो बनाया है मैं तुझे दूंगा, लेकिन आपने कुछ करना है. क्या करना है बताओ, मैं तो यहाँ पर मर रहा हूँ, बताओ. अरे आपको भूख लगी, आप मर नहीं रहा है, हमको बहुत ही सावधान रहना है. वॉट वी स्पीक, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. He should have said, I'm just hungry. He said, I'm dying here. You please tell me what I have to sell to me your birthright. Birthright का मतलब है क्या? जो पहलौटा होता है ना, उसके ऊपर आशीष रहती है. The firstborn has a special blessing. ये birthright होता है. जो पहले वाले को मिलता है ना, वो डिफरेंट है. आप जानते हैं ना, इन कोंकणी में से मालगोड़ो, राइट? सो पहलौटा के लिए बहुत कुछ मिलता है. उनके राइट्स है, उनके राइट्स. एवरीबडी से राइट, बर्थराइट. ओके, उसको बर्थराइट था. सो याकूब क्या कहता है? सेल मी योर बर्थराइट. अरे ये बर्थराइट क्या है, मुझे वो दाल दे दो, ले लो तुम्हारा बर्थराइट. सो जुबान से उन्होंने उसको बोला कि मेरा जो फर्स्टबॉर्न का राइट है मैं तुझे दे देता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दाल. समटाइम्स थोड़ी देर के प्लेजर के लिए लोग परमेश्वर को भी भूल जाते हैं. थोड़ी मजा लेने के लिए परमेश्वर को भी भूल जाते हैं. ऐसा नहीं करना. नेवर सेल your soul to the devil. Never sell your birthright. Never sell your blessings for a morsel of bread. No. Hallelujah. Something it is. Please listen very carefully. This is what Esau did. और एक दिन जब ईसो बाहर गया था, याकूब ने इसहाक को क्या किया? उनके पिता को उन्होंने फूल किया. ही फूल्ड हिज फादर. क्योंकि इसहाक ब्लाइंड था, वो अंधा हो गया था, और उन्होंने धोखा दिया अपने डैडी को. पूरी स्टोरी नहीं बताती हूँ. उन्होंने बोला कि मैं ईसो हूँ. उन्होंने जानवर का चमड़ी डालकर उसके ऊपर वो पिता के पास गया. पिता ने उसको फील किया और उन्होंने बोला मुझे आशीष दे दो, मैं ईसो हूँ. और उसके डैडी ने फर्स्टबॉर्न का जो ब्लेसिंग था, पहलौटा का जो ब्लेसिंग था, वो याकूब को दे दिया. याकूब धोखेबाज था, वो ब्लेसिंग उन्होंने लिया. और लेने के बाद ईसो को पता चलने के बाद उसको बहुत ही गुस्सा आता है. और अभी वो याकूब को मारने के लिए जाता है. और याकूब दौड़ता है. आपको पता है वो स्टोरी. दौड़ के चला जाते. उसकी मम्मी बोलती है जाओ अंकल के घर में जाओ. तो दौड़ते रात हो जाती है. स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सिर्फ तारे हैं वहाँ पर. और वहाँ पर परमेश्वर का इनकाउंटर उसको होता है. और परमेश्वर, आपको पता है ना ये, इन जेनेसिस chapter 28, God now speaks to him. अभी याकूब के साथ परमेश्वर बात करता है. Hello, this is so interesting. Hallelujah. Okay, listen. And then in Genesis 28, now God is speaking to Jacob. Behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham, your father, the God of Isaac, the land on which you lie. I will give to you and to your descendants. ये जगह जो है मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा. This is beautiful. Hallelujah. See, the promise is being repeated.
Also your descendants shall be as the dust of the earth. You shall spread abroad to the west and the east, to the north and the south. And in you and in your seed, all the families of the earth shall be blessed. Hallelujah. In you and in your seed, all the families of the earth will be blessed. Hallelujah. अभी हम देखते हैं कि अब्राहम को वादा किया था परमेश्वर ने, राइट? जबकि उसको एक बच्चा भी नहीं था, तो परमेश्वर ने वादा निभाया कि नहीं? परमेश्वर ने उसको एक वंश दे दिया, इसहाक बन गया, और इसहाक के द्वारा जेकब आ गया, और इसहाक के साथ भी परमेश्वर ने बात किया। अभी याकूब के साथ बात कर रहा है। ओके, तो बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद अभी याकूब वापस घर आ रहा है और वहां पर परमेश्वर उसको मिल जाता है। नाउ लेट्स सी हाउ इज़राइल केम। और जेनेसिस चैप्टर 32 में हम देखते हैं कि परमेश्वर याकूब के साथ कुछ बात कर रहा है। And in verse 28, and he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with man and have prevailed. यहाँ पर याकूब का नाम इज़राइल बन जाता है। परमेश्वर याकूब का नाम इज़राइल रखता है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And now, the Bible says that Jacob had 12 sons. How many? 12. And so they were the 12 tribes of Israel. Hallelujah. Hallelujah. Everybody knows the story? Okay, so now among these 12, so you are still in history, okay? I've still not come to that point yet, okay? So Israel को और याकूब को अभी 12 बेटे हैं. So 12 tribes of Israel, 12 sons. One of them was Joseph. One of them was Joseph. यूसुफ एक उसका बेटा था, और ये यूसुफ को ये सारे उसके जो भाई थे उसको नफरत करते थे. आपको ये स्टोरी पता है. और यूसुफ को खड्डे में डाल देते हैं, और यूसुफ को वहाँ के मर्चेंट मैन, बिजनेसमैन जो थे, वो उसको उठाकर मिस्र देश में लेके जाता है. वहाँ पर वो ऑफिसर बन जाता है. एक उसके मालिक के घर में वो काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, और बाइबल कहता है कि परमेश्वर उसके साथ था. और बाद में ऐसा समय आ जाता है कि वहाँ का जो राजा था उसको एक सपना गिरता है, और ये सपना का मतलब पता नहीं था. तो यूसुफ को बुलाया जाता है. आप यूसुफ की स्टोरी पता है. यूसुफ को बुलाया जाता है और वो कहते हैं कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ फैमिन इन द लैंड ऑफ इजिप्ट, यू हैव टू स्टोर अप द ग्रेन. आपको बहुत ही अन्न इकट्ठा कर कर रखना है. यू हैव टू कीप दैट. एंड दैट इज़ द टाइम his father Isaac and all his brothers, they come to Egypt. और वो मिस्र देश में आ जाते हैं. वो जब फैमिन पड़ता है, खाना लेने के लिए वो मिस्र देश में आ जाते हैं, और यूसुफ के द्वारा उनको वहाँ पर रहने का परमिशन मिल जाता है. Alright, and that is how you go to Exodus. Go to Exodus chapter 1 verse 7. Hallelujah. Praise the Lord. I'm just doing this because the Lord has given me the leading to speak these things to you. Praise the Lord. And I pray, Lord, that it would be completed as you told me. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Zaki. Thank you, Lord. Now we see in Exodus chapter 1 verse 5. All those who were descendants of Jacob were 70 persons, for Joseph was in Egypt already. All together there were 70. कितने लोग थे जब मिस्र देश में आ गए? 70, right? 70 लोग थे जब वो मिस्र देश में आ गए. All right. Now verse 7 said, but the children
and Joseph died, and all his brothers and all that generation died. But the children of Israel were fruitful and increased abundantly, multiplied and grew exceedingly mighty, and the land was filled with them. Hallelujah, hallelujah, हालेलुया। अभी ये इज़राइल के लोग 70 लोग जो थे वो अभी मिस्र देश में है। 70 लोग आए थे और वहां पर कितने साल रहे? How many years did they stay there? For about 450 years they were there in Egypt. And when did God say? God had already spoken to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बात किया था कि आपके वंश होंगे एक पराये देश में, वो बंधन में होगे चारशे वर्षांती असतेलेन 300 बानपासन असतेले औशे सांगलेले। परमेश्वर ने ऐसा कहा था, राइट? और ऐसा ही हो गया। और एक दिन वो इतना तंग आ गए कि परमेश्वर को उन्होंने पुकारा। they cried unto the Lord, and they cried and they said, oh God, save us. And God raised them up a leader called Moses. हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, उसको लीडर बनाया, और मूसा और आरोन के साथ दोनों वो जाकर फिरौन के साथ बात किया, let my people go, परमेश्वर के लोगों को जाने दो। और वो उन्होंने जाने को नहीं दिया, और बहुत ही चिन्ह, बहुत ही चमत्कार उस देश में हो गए, मिस्र देश में हो गया। जब भी कुछ भी शराब आते थे वो इज़राइल के लोगों पर नहीं आता था। हेलो, आर यू विथ मी? नाउ लिसन, आई एम गेटिंग टू यू द इंपॉर्टेंस ऑफ इज़राइल। Israel was a chosen nation of the Lord, and he is still today a chosen nation of the Lord. परमेश्वर ने इस देश को चुना है, praise the Lord। और वहां पर इज़राइल के सारे लोग जो थे, जब वो तंग आ गए, परमेश्वर ने एक राह बनाया और दरिया पार करके God opened the Red Sea and made them to cross on dry land. Hallelujah। एक सूखे जमीन पर परमेश्वर ने उनको चलने को दिया, दरिया पार करके उनको उस बंधन से बाहर निकाला। हालेलुया। फिरौन की सेना उनके पीछे लगी थी उनको मारने के लिए। परमेश्वर ने फिरौन की सेना को भी मार दिया, लेकिन अपने लोगों को बचाया। हालेलुया। God did great wonders for the people of Israel. There is no nation in this world that has seen so much wonders and so many miracles like Israel has seen. इज़राइल के लोगों ने बहुत ही परमेश्वर के कार्य देखे, बहुत ही परमेश्वर के मिरेकल्स देखा। हालेलुया। और जब वो रेगिस्तान में थे, जब वो विल्डरनेस और जंगल में थे, जब उनको भूख लगी, परमेश्वर ने स्वर्ग खोलकर उन्होंने स्वर्ग दूतों को खाना, वो मन्ना वो लोगों को दे दिया। He fed them in the wilderness for 40 years. No nation has seen the wonders of God as much as Israel has seen. Hallelujah। इज़राइल के लोगों ने इतना चमत्कार परमेश्वर के देखे, परमेश्वर का प्यार उन्होंने देखा। हालेलुया। And in Exodus chapter 19 verse 6 says, God calls them all together. परमेश्वर सबको अपने पास बुलाता है, पर्वत के पास बुलाता है। He calls them near Mount Horeb, and he speaks to the children of Israel, and he says to them that you are my chosen people, you are a peculiar treasure to me। आप मेरे भंडार हैं, आप बहुत ही अनमोल है मेरे लिए। You are the holy nation that I have chosen। मैंने तुझे चुना है। परमेश्वर उनके साथ बात करता है। I'm making you a kingdom, a holy kingdom out of you। जो राज्य मैं बनाना चाहता था इस धरती पर, मैं तुम्हारे द्वारा इस धरती पर ये राज्य को लाऊंगा। हालेलुया। This is what God is speaking to them। Praise the Lord। हालेलुया। और बहुत ही परमेश्वर ने उनको नियम बताया, अपना वचन बताया, अपना प्यार दिखाया। जब उनको प्यास लगी, परमेश्वर ने चट्टान को चीरकर वहां से उनको पानी दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इज़राइल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा परमेश्वर वो कैसे बना? इज़राइल एक chosen nation है। हालेलुया। The Lord says that Israel is my firstborn,
God told Moses, Israel is my firstborn. वो मेरा पहलौटा है. Hallelujah. Israel मेरा पहलौटा है. Israel is my firstborn, says the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. और पहलोटे का जो आशीष होती है वो इज़राइल को मिलना चाहिए. Praise the Lord. Praise the Lord. और अब्राहम को जो बताया था वो भी सही होना है कि अब्राहम के वंश के द्वारा पूरे राष्ट्र को पूरे नेशंस को आशीष मिलेगी. ये कैसा हो सकता था? हालेलुया. So Israel was growing, they were growing physically, but they were not coming close to God. वो परमेश्वर के नियम को जानते थे, लेकिन जो परमेश्वर कहता था वो करना नहीं चाहते थे और वो दूसरे भगवानों की पूजा करने लगे. जिस देश में वो चले गए, वहाँ के देश के लोगों की उन्होंने प्रैक्टिसेस उन्होंने अपने अंदर लाए और वहाँ के देश के भगवानों को वो पूजा करने लगे और अपने जीवित परमेश्वर को वो भूल गए. They forgot about their living God, and God had told them that do not worship the gods of the land in which you are dwelling, but they did not listen. उन्होंने परमेश्वर का नहीं माना और वो दूसरे भगवानों के पीछे जाने लगे. इसलिए परमेश्वर ने उनके हाथों में समर्पण कर दिया. And that is why Israel was in exile for 70 years in Babylon. बैबीलोन के हाथ में उनको छोड़ दिया और बैबीलोन के लोगों ने इज़राइल के लोगों को बंदी में लेके चले गए. And that is the time we see Daniel, that is the time we see Shadrach and Meshach and Abednego in Babylon. 70 साल वो बैबीलोन में थे, बाद में वो वापस आ गए. They came back from Babylon and then again they fell into the hands of the Midianites and the Persians. Hallelujah. Again they fell into the hand of the Grecian people. Again they fell into the hand of the Roman people and they were in bondage. रोमियो लोगों के हाथों में भी वो आ गए और इस समय सही समय यीशु मसीह इस धरती पर आ गया जब रोमियो लोगों का राज चल रहा था. When the Romans were ruling the earth in those days, the land in those days, Israel was in bondage, in captivity, even under the Roman rule. उस समय यीशु मसीह वहां पर आ गया. And the word became flesh. Hallelujah. परमेश्वर खुद ही आया अपने लोगों को बचाने के लिए और ऐसा लिखा था कि वहां से और याकूब के वंश से ये एक मसीहा आएगा जो अपने लोगों को बचाएगा. हालेलुया. This is what was written and the Bible says in John chapter 1 verse 11 that he came to his own and his own did not receive him. वो अपने लोगों के बीच में आया लेकिन उन्होंने उसको पहचाना नहीं. हालेलुया. कभी ऐसा ही होता है कि अपने लोगों के बीच में हम रहते हैं लेकिन अपने लोग ही हमको रिकॉग्नाइज नहीं करते. हमारे अंदर जो है वो देखते नहीं, समझते नहीं और वो हमको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. हालेलुया. यीशु मसीह को ऐसा ही हुआ. अपने लोगों के बीच में वो आ गया लेकिन उन्होंने उसको पहचाना नहीं. कौन थे ये अपने लोग? इज़राइल लोग थे, अपने लोग. हालेलुया. यीशु मसीह इज़राइल में वो पैदा हो गया. हालेलुया. दाऊद के वंश से वो आ गया. He came from one of the tribes of Israel which was Judah. युद्धा के वंश से दाऊद राजा आ गया और दाऊद के वंश से यीशु मसीह आ गया. Praise the Lord. Hallelujah. Because Joseph and Mary, they both descended from the lineage of David and Jesus was born. इस घराने में वो पैदा हो गया. Hallelujah. लेकिन यीशु मसीह साधारण नहीं था, वो खुद ही परमेश्वर था. Hallelujah. और परमेश्वर जो वचन था, वचन देहधारी हुआ and the word became flesh in Mary's womb when Mary was a virgin. जब वो कुंवारी थी तब ही उसके पेट में ये बच्चा आ गया. कहां से आ गया? पवित्र आत्मा के कृपा से. वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर देहधारी हुआ. उन्होंने एक देह लिया. He took up on a body and he came onto this earth. Hallelujah. Hallelujah. लेकिन उन्होंने उसको पहचाना नहीं. They did not recognize him. He was with them. They were waiting for a king to come and save them. They forgot everything. They were waiting for a
king to save them, and they were waiting for a king to come. Maybe they will come on a horse. शायद वो सोच रहे थे कि हमारा जो राजा आएगा हमको बचाने के लिए घोड़े पर सवार होकर आएगा, क्योंकि जो कोई राजा इससे पहले थे वो सब घोड़े पर सवार होकर आते थे. All the kings that have ever ruled Israel, all those kings were coming on horses. All those kings were born in palaces. सारे वो जो महल में उनका जन्म हुआ था सारे राजा का. लेकिन ये राजा जो आ गया, जो राजाओं का राजा है, वो इस महल में उसका जन्म नहीं हुआ, लेकिन जहां पर जानवर का जन्म होता है वहां पर उसका जन्म हुआ. Hallelujah. He was born in a stable. He was born in a manger. Hallelujah. His birth was so unexpected. Nobody could understand it, but it was all written. It was all written. Say it was written. सब लिखा था. इसलिए आपको पता चलना चाहिए कि लिखा क्या है. The only way the enemy can win upon our life is when you do not know the word. The ignorance of the word of God is what through which you will be defeated. If you don't know the word of God, what is written, क्या लिखा है, अगर आपको पता नहीं है तब भी शैतान आपको हराएगा. Only then you will lose. Only then, when you don't know what is written, you have to know what is written, then nobody can fool with you. Hallelujah. ऐसा लिखा था, लेकिन उन्होंने अपने कान को खोला नहीं था, अपने आंखों को खोला नहीं था. इसलिए यीशु मसीह कहता है जिसको कान है उसको सुनना है. He that has ears to hear, let him hear. Not everybody can hear the word of God. Everybody is opening their physical ears, but you got to have the ears of the spirit. Hallelujah. आत्मा के कान, परमेश्वर हमारे आत्मा के कान को खोलिए. Hallelujah. Say Lord, open the ears of my spirit. I want to hear what you are speaking to me. Say Lord Jesus, open the eyes of my spirit. मेरे आत्मा के आंखें खोलिए पिता, ताकि मैं देख सकूं जो तूने मेरे लिए रखा है. Praise the Lord. Hallelujah. उनकी आत्मा की नजर बंद थी, उनके आत्मा के कान बंद थे. इसलिए परमेश्वर ने उस यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था उसको खड़ा कर दिया वहां पर. और वो he was a forerunner. He was going ahead of Jesus to prepare the way of the Lord. और यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था वो कहने लगा कि ये है परमेश्वर का मेमना जो पूरे जगत का पाप उठा लेता है. Hallelujah. He is the Lamb. Behold the Lamb of God. किसी के मुंह में परमेश्वर ने डाला कि ये है. This is the Lamb of God. Hallelujah.